Assalamualaikum warahmatullah. Myself Ravi Nabi, a zoology educator from Green Valley Educational Institute. Today, our topic we will discuss about the anatomy of testes. Let us discuss the first thing, that is the testes. We all know that this part, the testes, are formed. So we have discussed the anatomy of testes. As we all know that the testes are the primary sex organ. This testes we can call it's a primary sex organ. The question arises here, why we called it a primary sex organ? There are two reasons. एक reason ये कि this testes secretes, ये testes जो है ये तो एक secrete करता है gamete. It secretes the gamete as well as it secretes the hormone. There are two main functions of testes. One, it secretes the gamete, and second, it secretes the hormone. The male gamete को जब हम नाम देते हैं, we can call it secretes the sperm. The process we can call it spermatogenesis. First thing, that is why we can call it is a primary sex organ. This testes ये lie करता है outside the abdominal region. The question, ये lie करेगा outside the abdominal region in a pouch-like structure called scrotum. The first thing, पहली बात ये कि this testes we can call it is a primary sex organ. ये बनेगा primary sex organ. The answer is it secretes hormone as well as it secretes the gamete. The gamete we can call sex cell, that is called sperm. Testes बनता है inside the abdominal region, लेकिन after the 7th month of pregnancy यानी कि fetal life में testes जो है ये descend होता है through inguinal canal और आ जाता है इन scrotum. फिर से हम रिपीट करते हैं. The testes are the primary sex organ. Why? Because it secretes the gamete, that is called sperm. Then the second part is secretes the hormone. That hormone is known as testosterone. ये lie करता है outside the abdominal region in a pouch-like structure we can call them scrotum. लेकिन बनता है inside the abdominal region. बनेगा inside the abdominal region 7th month of pregnancy में, यानी कि in the month of 7 ये descend होगा तो inguinal canal और आएगा एक pouch like structure में, that is called the scrotum. The question arises here, why outside, why not inside? अगर ये inside बनेगा तो outside lie क्यों करता है? This scrotum part it maintains because it maintains the temperature. ये maintain करता है temperature of testes for proper spermatogenesis, ताकि proper spermatogenesis हो जाए. इसलिए scrotum जो है maintain करता है temperature 2 to 2.5 degree lower than body temperature. यानी कि जो हमारी body temperature है उससे 2 to 2.5 डिग्री लो टेम्परेचर को मेंटेन करता है स्क्रोटम, ताकि प्रॉपर सुपरमेटोजेनेसिस हो. सुपरमेटोजेनेसिस के माने हो गया फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, दैट इज कॉल्ड स्पर्म. 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर देन बॉडी टेम्परेचर. इन सम ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स में टेस्टिस लाई इनसाइड. जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे रखे एक्वाटिक मैमल्स. एक्वाटिक मैमल्स में ये जो टेस्टिस वाला पार्ट है ये लाई करता है इनसाइड. अगर हम एक और एग्जांपल दे एलिफेंट में भी टेस्टिस इनसाइड ही रहते हैं, लेकिन इन ह्यूमंस की हम बात करते हैं इट इज फॉर्मड इनसाइड. ये तो बनते हैं इनसाइड द एब्डोमिनल रीजन, लेकिन नीचे आ जाते हैं, डेसेंड आ जाते हैं फीटल लाइफ के 7th मंथ में, तो एक किनाल के थ्रू इंग्यूनल किनाल आ जाता है स्क्रोटम में. वाई स्क्रोटम? क्योंकि स्क्रोटम जो है it maintains the temperature of testes for proper spermatogenesis. ये scrotum वाला part and it maintains the
temperature of testes for proper spermatogenesis. Spermatogenesis means formation of sperm. The second part, how it maintains the temperature. Question number 2, कैसे maintain होगा temperature? इधर मैं लिखता हूं, how it maintains the temperature. Temperature को कैसे maintain करता है part, and that part is known as scrotum. The first thing, inside the scrotum there are glands and we can call them sweat glands. यहाँ पे numerous sweat glands present होते हैं and they secrete sweat. ये secrete करते हैं sweat. The first thing, sweat gets evaporated, sweat evaporate हो जाता है, result cooling effect. जब कूलिंग इफेक्ट रिजल्ट आया तो इसके माने हो गया, रिजल्ट आया कूलिंग इफेक्ट, तो इसके माने हो गया टेम्परेचर जो है वो मेंटेन हो गया लोअर देन बॉडी टेम्परेचर. दैट इज व्हाई इट इज प्रेजेंट इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर एंड वी कैन कॉल देम स्क्रोटम. द नेक्स्ट थिंग, दैट इज how the muscles which is present inside the scrotum, जो मसल स्क्रोटम में प्रेजेंट होती है वो कैसे इस टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करती है. द थिंग इज हियर, यहां पे देयर इज अ मसल नामली कॉल्ड एज क्रीमास्टर मसल. ये जो क्रीमास्टर मसल है, इट इज एन इनवॉलंटरी मसल प्रेजेंट इन मेल्स. मेल्स में स्क्रोटम वाले पार्ट में यहां एक मसल प्रेजेंट होती है एंड दैट मसल वी कैन कॉल इट्स अ क्रीमास्टर मसल. एंड दिस मसल, ये मसल ऐसी मसल है व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस, जब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, व्हेन बॉडी टेम्परेचर डिक्रीजेस, जब इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, ये जो क्रीमास्टर मसल है ये कंट्रैक्ट हो जाती है, इट गेट्स कंट्रैक्टेड. और कंट्रैक्ट के कारण ये क्या करता है, इट पुल्स अप, ये पुल अप करता है स्क्रोटम को टुवर्ड्स द एब्डोमिनल रीजन, टुवर्ड्स एब्डोमिनल यानी कि टुवर्ड्स बॉडी. इस तरीके से टेम्परेचर को मेंटेन होता है. द सेकंड पार्ट, द थर्ड पार्ट इज दैट देयर इज अनदर मसल दैट इज कॉल्ड द ड्यूटस मसल. और ये ड्यूटस मसल क्या काम करेगा, ये भी एक इनवॉलंटरी मसल है. इट इज आल्सो एन इनवॉलंटरी मसल. ये इनवॉलंटरी मसल एक ऐसी मसल, जब भी टेम्परेचर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, ये कंट्रैक्ट हो गया, और ये जब कंट्रैक्ट होता है स्क्रोटम जो रहेगा वो मूव होगा अपवर्ड्स. ठीक, अब अगर टेम्परेचर लो हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज, इफ टेम्परेचर गेट्स डिक्रीजेस, ये मसल जो है ये रिलैक्स हो जाती है और स्क्रोटम वाला पार्ट जो है वो मूव अवे फ्रॉम द एब्डोमेन, ये मूव अवे होता है एब्डोमिनल रीजन से. इस तरीके से टेम्परेचर जो है वो मेंटेन होता है. ये तीन पार्ट्स. पहला पार्ट कि इसमें न्यूमरस स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स के कारण स्वेट आएगा, इवोपरेट होगा और कूलिंग इफेक्ट आएगा एंड इट मेंटेन्स द टेम्परेचर. The second part, there is a muscle and we can call them cremaster muscle. Cremaster muscle contract होगी when the temperature decreases, जब decline होगा, और scrotum move होगा upwards और attach होगा body wall के साथ and it gains the temperature. The third one, there is a muscle and that muscle is known as gluteus muscle. Gluteus muscle is also called as involuntary muscle. जब temperature decrease होगा या जब temperature increase होगा या डिक्रीज होगा, it gets relaxed, increase होगा, it gets relaxed and move away from the body region. These two muscles help us the testes to maintain the temperature. And the third, and which is very important, that is पेप्निफॉर्म plexus. एक और पार्ट है that is called पेप्निफॉर्म plexus. जो पेप्निफॉर्म plexus वाला पार्ट है, ये रिफ्लेक्स जो है, टेस्टिस में दो स्ट्रक्चर्स यानी कि दो वेसल्स इंसर्ट होती हैं जो ब्लड लेके आती है. वन इज कॉल्ड ट्रांसवर्स आर्टरी, और ये ट्रांसवर्स आर्टरी जो है ये लेके आता है वार्म ब्लड, यानी कि इसमें जो ब्लड का टेम्परेचर होता है वो ज्यादा होता है, और यहां से आ जाती हैं एक और वेन दैट इज कॉल्ड ट्रांसवेन, और ये जो वेन है ये लेके आती हैं कोल्ड ब्लड. अब देखो,
यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर ये मान के चले दिस वन इज कॉल्ड द आर्टरी, ये आर्टरी है, इसके इर्द गिर्द क्वाइलर फॉर्म में वेन आ जाती है, वेन में है कोल्ड ब्लड, आर्टरी में है वार्म ब्लड, इनके बीच में एक्सचेंज होता है टेम्परेचर, इनके बीच में एक्सचेंज हो जाता है टेम्परेचर, तब जाके कूलिंग इफेक्ट आर्टरी को मिलता है और वार्म इफेक्ट मिल जाता है वेन को। इस तरीके से स्क्रोटम मेंटेन्स द temperature of testes for proper spermatogenesis. The three questions is here. The first one, testes, we can call them primary sex organ. The second, why it is outside, why not inside? If it is formed inside, why it descends outside? उसका आंसर हमने दिया, क्योंकि सुपरमेटोजेनेसिस के लिए बॉडी से लोअर टेम्परेचर होना चाहिए, दैट इज 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। उनको तीन चीजों, there are three structures, one is sweat gland, one is muscles, and the third one, that process that is called tapeniform plexus। इस तरीके से इस का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करता है एक पार्ट, एंड दैट पार्ट इज नोन एज स्क्रोटम। हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगर हम देखें अब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ओवरव्यू ऑफ टेस्टिस, अगर हम टेस्टिस का स्ट्रक्चर अब हम देखें, ऐसा टेस्टिस का स्ट्रक्चर सबसे पहले ये ओवल शेप्ड रहता है, ऐसा जो डायग्राम में दिया गया है, इट्स एन ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर। इसकी जो विड्थ रहती है, ये वाला पार्ट 2 to 3 सेंटीमीटर इसकी विड्थ रहती है, और इसकी लेंथ जो रहती है वो रहती है 4 to 5 सेंटीमीटर। ठीक, अगर हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखें, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस, इधर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस हम देखें, देयर आर कवरिंग्स, इसमें 3 कवरिंग्स मौजूद होती है, एंड दीज कवरिंग्स आर नोन एज टेस्टिकुलर कवरिंग्स। उनको मैं नाम देता हूं टेस्टिकुलर कवरिंग्स। We can call these coverings are known as testicular coverings। और इन coverings में जब हम उनका नाम देते हैं, the first one that is called, हमारे पास tunica vaginalis, दो कवरिंग को हम यहां डिस्कस करेंगे, and the second one that is called tunica albuginea, and the third one tunica viscosa, vasculosa। There are vasculosa, albuginea and vaginalis। अगर हम ये टेस्टिस वाला पार्ट देखें, द फर्स्ट कवरिंग, ये वाली कवरिंग जो होती है, जो आउटर साइड होती है, दिस द आउटर कवरिंग, दिस कवरिंग इज नोन एज, इस कवरिंग को मैं नाम देता हूं, दिस कवरिंग इज नोन एज वेजिनेल्स। इस वेजिनेल्स में दो पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। इन ट्यूनिका वेजिनेल्स के दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि इसके दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, दो लेयर्स होते हैं। वन इज कॉल्ड विच इज इनर साइड, उसको हम नाम देते हैं विसरल लेयर, और जो बाहर वाला साइड से होता है वी कैन कॉल देम पायरेटल लेयर। इसी पायरेटल और विसरल लेयर के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, एंड दैट फ्लूइड इज नोन एज सीलोमिक फ्लूइड। इस फ्लूइड को मैं नाम देता हूं सीलोमिक फ्लूइड, एंड दिस इज द आउटर कवरिंग, ये बाहर वाला कवरिंग है टेस्टिस का, एंड दिस कवरिंग इज नोन एज ट्यूनिका वेजिनेल्स। जब हम ट्यूनिका वेजिनेल्स के बाद आते हैं, देयर इज अ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, एक व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, ऐसे the white fibrous connective tissue, and this white fibrous connective tissue we can call it tunica albuginea। इसको हम नाम देते हैं tunica albuginea। अगर हम यहाँ पे डायग्रामेटिकली इसको समझने की थोड़ा सा कोशिश करें, मैं इसको इरेज पहले करता हूं, ये वाले पार्ट को। अब डायग्रामेटिकली इसको समझने की कोशिश करें, इधर अगर हम यहां पे चलते हैं, और ये वाला पार्ट जो है, मान के चलिए दिस वन इज नोन एज द टेस्टिस। एक टेस्टिस हमने लिया, इंटरनल स्ट्रक्चर। टेस्टिस के बाहर वाले स्ट्रक्चर में ये वाला पार्ट जो बनेगा, एक व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो इसके साथ जुड़ा होगा, ये, एंड दिस पार्ट इज नोन एज ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इस पार्ट को मैं नाम देता हूं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, एंड दिस ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या करेगा काम, ये अंदर की ओर, टेस्टिस के अंदर की ओर कंपार्टमेंट्स बनाएगा।
कंपार्टमेंट्स बनाएगा एंड दीज कंपार्टमेंट्स आर नोन एज, इन कंपार्टमेंट्स को मैं नाम देता हूं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. वी कैन कॉल दीज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. पहला structure that is called tunica vaginalis. The second part we can call them tunica albuginea, a white fibrous connective tissue. This white fibrous connective tissue makes a structure inside the testes and we can call them compartments or we can call them testicular lobules. Almost there are 250 compartments, 250 compartments present in one test. एक टेस्टिस में, एक ह्यूमन बॉडी में, मेल की बॉडी में 250 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. एंड इन दीज कंपार्टमेंट्स, इस कंपार्टमेंट्स में प्रेजेंट होता है, इस कंपार्टमेंट में प्रेजेंट होता है कॉइलेड स्ट्रक्चर एंड वी कैन कॉल देम सिम्निफेरस ट्यूब्यूल्स. ये वाला पार्ट जो है, ईच कंपार्टमेंट में सिम्निफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होता है. There are the compartments and these compartments are called testicular lobules. And in these compartments, there are seminiferous tubules. अल्लाह ताला ने यहाँ पे seminiferous tubules को रखा और यहीं से germ cells को निकालेगा. seminiferous tubules एक कंपार्टमेंट में, अगर हम एक कंपार्टमेंट की बात करते हैं 1 to 3, यानी कि 1 to 3 seminiferous tubules are present. यानी कि एक टेस्टिस में या तो 250 सिम्निफेरस ट्यूब्यूल हो सकता है मिनिमम. अगर हम मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम इसमें 750 सिम्निफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट इन वन टेस्टिस. इस सिम्निफेरस ट्यूब्यूल्स में दो टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट होती है. यानी कि इसी सिम्निफेरस ट्यूब्यूल में two types of cells are there. One is called germ cell and second one is called nerve cell or Sertoli cell. हम nerve cell ही याद रखें. जो germ cell है, germ cell एक cuboidal cell होती है. This is the cuboidal cell. और ये cuboidal cell क्या करेगा काम? It secretes, यही secrete करेगा. It secretes the sperm. And this sperm is haploid. यानी कि हाफ क्रोमोसोम लेके ये स्पर्म निकलेगा सिम्निफेरस ट्यूब्यूल के एक सेल से and that cell is known as germ cell. The second one that is called the nerve cell or we can call them Sertoli cell. ये जो नए सेल वाला पार्ट है ये करेगा, it provides nourishment. ये इसको nourishment देगा, nourishment to sperm. स्पर्म की देखभाल के लिए अल्लाह ताला ने यहाँ पे एक सेल को रखा. That cell is known as nerve cell. जो ही स्पर्म से निकला, इमेच्योर स्पर्म निकला, उसकी देख रेख के लिए एक सेल लगी है. That is known as nerve cell, जिसको हम कॉलमनर सेल के नाम से जानते हैं. ये कॉलम लाइक होती हैं and it provides nourishment to the sperms. ये प्रोटीन को या ABP एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को रिलीज करता है. We can call it एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन. एक प्रोटीन रिलीज होगा that is known as एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन. ये प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन है जो टेस्टोस्टेरोन को, जो निकलेगा टेस्टिस से ही, जो टेस्टोस्टेरोन की रेट जो है इनसाइड सिम्निफेरस ट्यूब्यूल्स में इंक्रीज करेगा. सिम्निफेरस ट्यूब्यूल के इनसाइड वाले पार्ट में इसकी रेट को इंक्रीज करेगा. इस वर्ड से मुझे ये पता चला कि सिम्निफेरस ट्यूब्यूल में टेस्टोस्टेरोन इनसाइड नहीं बनता, आउटसाइड बनता. वो उसके बाद हम पढ़ेंगे. तो पहला काम जर्म सेल सिक्रीट करेगा, स्पर्म नर्व सेल करेगा नरिशमेंट, यानी कि एक प्रोटीन को रिलीज करेगा दैट इज कॉल्ड एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो टेस्टोस्टेरोन को पकड़ के लेके आएगा इनसाइड द सिम्निफेरस ट्यूब्यूल, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस हो, ज्यादा से ज्यादा स्पर्म का रिलीज होना हो. द थर्ड वन, इट एक्ट्स एज अ ब्लड बैरियर. ये बनेगा ब्लड बैरियर. अब या अल्लाह रब्बिकुमा तो कज़िबान, ब्लड बैरियर बनेगा, यानी कि टॉक्सिक सब्सटेंस को रोकेगा बाहर, क्योंकि स्पर्म्स का आना है आफ्टर द एडोलेसेंस पीरियड. एडोलेसेंस के बाद WBCs के लिए स्पर्म एक नई चीज है बॉडी में, उनको रोकेगा कि ये अपना ही बंदा है, अपनी ही बॉडी से रिलीज हुआ है, रखेगा वहां पे एक ब्लड बैरियर सिस्टम. कौन बनाएगा? दैट इज कॉल्ड नर्व सेल.
फीटल लाइफ में ही एक पार्ट है, हमारे पास दो डक्ट्स रिलीज होते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूं, दो डक्ट्स रिलीज होते हैं, ह्यूमन में दो डक्ट्स होते हैं। एक डक्ट होता है जिसको हम नाम देते हैं मिल्यूरियन डक्ट। मिल्यूरियन डक्ट बनता है मेल में, सॉरी मिल्यूरियन डक्ट बनता है फीमेल में, और वुल्फियन डक्ट बनता है मेल्स में। जब 7th to 8th वीक प्रेगनेंसी मोड में फीटल लाइफ में यहां से निकलेगा एंटी मिल्यूरियन हार्मोन। एंटी मिल्यूरियन हार्मोन, अगर ये हार्मोन नहीं निकला भाई गड़बड़ होगा। देयर इज अ मेल बट दैट मेल इज नॉट अ प्रॉपर मेल, वो गड़बड़ वाला पार्ट होगा। एंटी मिल्यूरियन हार्मोन निकलेगा नर्व सेल का, और वो इस मिल्यूरियन डक्ट को बनाने से रोकेगा, कंट्रोल करेगा, डेवलप होने नहीं देगा। डक्ट डेवलप होगा वुल्फियन डक्ट। उसके बाद भी निकलेगा जब फीटल लाइफ, that hormone is known as anti-Mullerian hormone। ये काम है एक सेल का, and that cell is known as nerve cell। सिम्निफेरस ट्यूब्यूल के बाद यहां पे हम आते हैं, ये जो सिम्निफेरस ट्यूब्यूल है, सिम्निफेरस ट्यूब्यूल से एक छोटी सी डक्ट निकलेगी, ऐसी स्ट्रेट ट्यूब निकलेगा, ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा, एंड वी कैन कॉल इट ट्यूब्यूले रेक्टे। बिजनेस गसन बान आसिंग बान च परवरदिगारन थेमी, and these structures, these ducts are known as tubulae rectae। यानी कि स्पर्म तो निकलेगा और वो स्पर्म में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में आएगा, and that tube is known as tubulae rectae। इसको हम नाम देते हैं tubulae rectae। The second one, tubulae rectae एक झुंड बनाएगा, मैश बनाएगा, नेटवर्क बनाएगा, and that network is known, उस झुंड को मैं नाम देता हूं रेटी टेस्टीज। सबसे पहले सिम्निफेरस ट्यूब्यूल, सिम्निफेरस ट्यूब्यूल के बाद एक डक्ट दैट इज कॉल्ड ट्यूब्यूले रेक्टे, जो स्पर्म को लेगा और रेटी टेस्टीज में डालेगा। नंबर ऑफ न्यूक्लियस मैश लाइक स्ट्रक्चर झुंड होगा। और रेटी टेस्टीज के बाद यहां पे एक और डक्ट उठेगी, एंड दैट डक्ट इज नोन एज, इस डक्ट को मैं नाम देता हूं duct is known as vasa efferentia। और ये vasa efferentia कितना होता है? 15 to 20 in number in males। वासा इन काम क्या है इन डक्ट्स का? इनका सिर्फ काम ये है जो सिम्निफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म बना, वो ट्यूब्यूले रेक्टे से होते होते बाहर रेटी टेस्टिस में, रेटी टेस्टिस से बाहर आएगा किस में? वासा एफ्रेंशिया में। एक ट्यूब लाइक स्ट्रेट ट्यूब है, कॉइलेड ट्यूब है। वासा एफ्रेंशिया के बाद जो बाहर वाली डक्ट आती है, इन तीनों को मिला के मैं नाम एक सजेस्ट करता हूं, दैट इज कॉल्ड इंटरटेस्टिकुलर डक्ट। इंटरटेस्टिकुलर डक्ट, हमारे पास 3 डक्ट्स है जिनको मैं नाम देता हूं इंटरटेस्टिकुलर डक्ट्स, एंड दीज डक्ट्स आर ट्यूब्यूले रेक्टे, द डक्ट आर रेटी टेस्टिस, द डक्ट आर वासा एफ्रेंशिया। वासा एफ्रेंशिया के बाद एक हाईली कॉइल्ड ट्यूब आएगा, एंड दैट हाईली कॉइल्ड ट्यूब इज नोन एज एपिडाइडाइमिस। ये वाला पार्ट, अगर हम यहां पे आते हैं, एक ट्यूब यहां से एक हाईली कॉइल्ड ट्यूब जनरेट होगा जो टेस्टिस से बाहर आएगा। इस ट्यूब को हम नाम देते हैं, जो हाईली कॉइल्ड ट्यूब है, इज अ वेरी हाईली कॉइल्ड ट्यूब, एंड दैट ट्यूब इज नोन एज एपिडाइडाइमिस। और यहीं पे स्पर्म जो है घूमने लगता है, मोटिलिटी आती है, मैच्योरिटी स्पर्म की यही आती है। यानी कि स्पर्म की जो मैच्योरिटी आती है वो 14 डेज के बाद, 14 दिन लगते हैं स्पर्म को मैच्योर होने में। और कहां पे मैच्योर होगा? मैच्योर होगा एपिडाइडाइमिस में। एपिडाइडाइमिस के 3 पार्ट्स, इस पार्ट को मैं हेड नाम दूं, इस पार्ट को मैं बॉडी नाम दूं, और इस पार्ट को मैं हक से नाम देता हूं, दैट इज कॉल्ड टेल। There are 3 parts of epididymis which receives the sperm from the vasa efferentia। और यहीं पे sperm जो है स्टोर होते हैं, टेम्पररी स्टोर द स्पर्म, और उसके बाद वहां पे स्पर्म मैच्योर भी होगा और उसमें मोटिलिटी भी आएगी। यानी कि कुछ टाइम तक स्पर्म जो है वो रहेगा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, एक हाईली कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, एंड दैट कॉइल्ड ट्यूब इज नोन एज वासा एफ्रेंशिया। तक हम पहुंचे
एपिडाइडाइमिस वाले पार्ट पे देयर आर 3 पार्ट्स, हेड, बॉडी एंड टेल। यहीं पे स्पर्म जो है, जो रिलीज हुआ है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से, वो आया है ट्यूब्यूलर रेक्टे में, ट्यूब्यूलर रेक्टे से रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस से वासाई फ्रेंचिया, वासाई फ्रेंचिया के बाद आया एक हाईली कॉइल्ड ट्यूब में जो टेस्टिस के आउटसाइड से लाई करेगा, एंड वी कैन कॉल देम एपिडाइडाइमिस। इंशाल्लाह रहमान इन नेक्स्ट क्लास हम कंटिन्यू करेंगे कि ये जो एपिडाइडाइमिस है कैसे मिलेगा वासा डिफरेंस से, कैसे बाहर आएगा, एक कॉर्ड बनेगा दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटिक कॉर्ड, कैसे ग्लैंड से जाके मिलेगा, कब जाके सेमिनल फ्लूइड बनेगा। इंशाल्लाह ताला हम कंटिन्यू करेंगे इन नेक्स्ट क्लास। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।